Okay, students. So let us recall what we have discussed. We have discussed about yes, that is bonding in the carbon, that is covalent bonding. I told you covalent bonding is formed by tell me covalent bonding is formed by Ma'am, sharing of electrons. sharing of electrons. And in my previous chapter, we discussed about ionic bond, that is electrovalent, that is formed by giving or taking electrons, right? That is a difference. And we have discussed about allotropes of carbon. In that, we have discussed about graphite, diamond. This is the allotropes of carbon. We have discussed about diamond, graphite, and fullerene. What is the basic difference in these three? The arrangement of electron structure, right? Basic difference क्या है? Structure. And you know that why there is why we are having allotropes, because carbon is an element which can combine with other atoms of carbon itself, right? I told you we are having phosphorus, we are having sulfur. ये phosphorus और sulfur क्या होते हैं? ये combined हो जाते हैं phosphorus P5. ठीक है, phosphorus का formula हम लिखते हैं P5. That means P can be combined in 5P, right? P like that we can combine. And in sulfur we are having the formula S8. That is 8 atoms of sulfur can co-link, वो आपस में chain बना सकते हैं. But carbon is the only element that can form long chains. In fullerene, it is having carbon 60. So it is the only element which can form long chain. Right? Clear? So this is with the element exists in two or more different forms, that is called allotropes. We have discussed that. And before that, we have discussed very much important topic, that is formation of covalent bond, electron dot structure of oxygen, electron dot structure of nitrogen, electron dot structure of methane, ethane we have discussed. You have any doubt, then you can ask me. If you are having any doubt in these structures, you can ask me. Have you gone through your book? Book पढ़ी थी आपने? Anyone? Beta, read the chapter. This is the chapter which are based on understanding. I am telling you again and again. यहाँ पर आपके रट्टे नहीं चलेंगे. आपको लर्न करना नहीं है, आपको समझना है. Again I am telling you. Right? Practice this electron dot structure, then only you will come to know what is the basic idea. ठीक है? शेयरिंग आपको वैसे समझ आ गई होगी, बट जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा. आई एम गिविंग यू मेनी मोर एग्जांपल्स. स्लाइड्स बना बना के मैं आपको दूंगी. आई विल सेंड टू यू सल्फर S8 का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, that I will send you, because S8 का डायग्राम आपको आ जाता है. It might be given in your book, I don't think, but I will tell you how to draw the structure of S8. S8 दिया नहीं हुआ है, but it is an important, okay, that I will give you in the slide. Clear? So go through again. If you are having doubt, you can ask me tomorrow also. Tomorrow we are having class. Okay? Followed or no? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So practice this. So now I am going to discuss with you
इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, भाग रहे हैं ये लैपटॉप में। मैंने वो स्पीकर के लिए भेजा था, कुछ और प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। Okay, today what I am going to discuss with you, that is about structure of versatile nature of carbon, right? You are having the topic on page 62, that is versatile nature of carbon. Till 61 I have already discussed. Now versatile nature of carbon, what you are going to study? As I told you that carbon can form a large number of compounds, right? I told you we are having this chapter under a branch of chemistry called, that is organic chemistry, right? Why we are having separate branch of organic chemistry? Organic chemistry means this deals with only carbon compound. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोई भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ोगे. दैट मीन्स how many carbon compounds are present here? It is more than 3 millions, and that is why we are having a separate branch of chemistry. Now reason is that why this carbon can form so much of compounds, carbon के इतने सारे compounds क्यों हैं? Due to their two properties, जो कि हम इसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. कार्बन के पास ही ये प्रॉपर्टी है और किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? कार्बन कैन फॉर्म विथ अदर कार्बन एटम्स. बॉन्डिंग जो है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है. सी हियर यू कैन सी दिस टाइप, यू कैन हैव लॉन्ग चेन्स, right? See now 6 carbon is mentioned here. You can write 20 carbons, 25 carbons. We are having long chains, and this is the only element which can form like this long chain, right? Clear? And see here, now this 6 carbon is written here. We can make these branches like this. कार्बन 4 इधर बना के 5th कार्बन हमने इधर अटैच कर दिया, एक 6th कार्बन हमने इधर अटैच कर दिया. इस तरीके से आप ब्रांच चेन भी बना सकते हो कार्बन. थर्ड वन इज यू कैन फॉर्म लाइक रिंग स्ट्रक्चर. ये रिंग है, इट इज अ क्लोज्ड. ठीक है, आपने इधर देखना कि कार्बन के 4 कॉर्नर्स अटैच होने चाहिए. अगर आप इधर देखोगे, देखो एक कॉर्नर इधर से अटैच हो गया, एक कॉर्नर इधर से अटैच हो गया, एंड हियर यू विल हैव वन मोर कार्बन हियर, और यू कैन हैव हाइड्रोजन, और यू कैन हैव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन, राइट? अब यहाँ पर हम इसको हम बोलते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये. यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे लगा सकते हैं, राइट? समझ आ गया? ये 3 और 3 6 है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन. मतलब साइकिल बन गई और 6 कार्बन है. देखो, इफ यू आर हैविंग 1 कार्बन, वी कॉल इट एज मीथेन. 1 कार्बन विद मीथेन, यू नो दैट. अगर सेकंड कार्बन आता है तो देन इट इज इथेन. 3 कार्बन आता है तो ब्यूटेन. 4 कार्बन आता है तो यू कैन राइट मीथेन, इथेन. 3 कार्बन में प्रोपेन, 4 कार्बन में ब्यूटेन, 5 कार्बन में पेंटेन. लाइक दैट यू कैन राइट. दैट इज कॉल्ड नेम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, समझ आ गया? विल स्टार्ट विद द 1 कार्बन. 1 कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते हैं. यू हैव सीन द स्ट्रक्चर इन मीथेन. सी हियर, this is 1 carbon attached with 4 hydrogen, so this is called methane, right? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है. What are hydrocarbon? The compounds which are made up of carbon and hydrogen. Hydro means hydrogen, carbon means carbon, right? So what are hydrocarbons? The compounds which are made up of carbon and hydrogen. So this is called methane. Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. Why? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा. Ma'am, मैंने अपना फोन इसीलिए अटैच साथ में रखा हुआ, मेरे को फोन पे विजिबल हो रही screen है. is visible, but your ओके मैम ऑडिबल है. मैम एक बार फिर से बेटा, शेयर कर किसी के दोगे? ना कई बार मैम नेट में, ऑडिबल है. ओके बेटा, किसी के कई बार नेट में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा स्लो और थोड़ा लाउडली बोल दूँ. नाउ यू कैन सी
फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन का ये फर्स्ट मेंबर है मीथेन, राइट. हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्लियर. पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? मैम आपकी स्क्रीन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो हो रहा है. हाँ, इलेक्ट्रॉन स्लाइड स्ट्रक्चर ही दिखा रही हूँ मैं आपको. मैं बता रही हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही दिखा रही हूँ मैं. चेंज नहीं करा अभी मैंने. ठीक है. मैंने अपने फोन पे स्क्रीन डाली हुई है. मेरे को फोन से पता लग जाता है कि स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है. मैंने अपना फोन आपके साथ ही अपने लैपटॉप के साथ ही रखा है. ठीक है. इसीलिए मैंने फोन पे भी मैं करती हूँ. फोन से मुझे पता लगता रहता है कि आर यू एबल टू सी द स्क्रीन और नो. चलो, इट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की ही स्लाइड मैंने फोकस की हुई है अभी, राइट. क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है. जब तक आपको पता नहीं लगेगा, स्टार्टिंग बेस ही नहीं पता लगेगा तो आगे समझ नहीं आएगा बेटा. क्लियर. तो सबसे पहले यू नो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, yes, made up of hydrogen and carbon. hydrogen and carbon. And what is the first member? We'll start with one carbon, right. फर्स्ट एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट वन कार्बन विल बी अटैच बाय 4 हाइड्रोजन. एक कार्बन के साथ एटलीस्ट 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, देन ओनली इट विल बी स्टेबल. सो दिस इज द मीथेन. इसको मेथ बोल देते हैं. फर्स्ट मेंबर कौन सा हाइड्रोकार्बन का? मीथेन. नाउ व्हेन द कार्बन इज 2, right, automatically you will have hydrogen 6. See, you can here I told you that day also you have to write one C here. ये दो कार्बन है and it will be attached with the 6 hydrogen like this. So second member is ethane, and that way you can write the structure of propane. अगर कार्बन 3 है you can write कार्बन 3 के साथ H8 आएगा and it is propane, right. I will be having the slide also. See here, first is methane, right. Second is ethane. Third one is propane. Fourth one is butane, and fifth one is pentane. These are called homologous series because they are differ by CH2 groups. ठीक है. इसमें देखो कार्बन एक बढ़ता जा रहा है और नीचे देखते जाओ. कार्बन is increasing by 1 and hydrogen is increasing by 2. Have you noticed? नोटिस किया है? Yes or no? Yes, Carbon ma'am. is increasing by 1 and hydrogen is increasing by 2. These are the homologous series we बोलते हैं इनको. These are the hydrocarbon. So before this, I am coming to first slide, that is लैपटॉप में बेटा कोई प्रॉब्लम करती है. मेरा लैपटॉप इतना बढ़िया चलता था. See, so first we are discussing why this carbon forms large number of compounds. ठीक है. एक मैंने आपको ये ब्रांच चेन बताई है, right. This मैंने आपको बताया carbon can bond with other carbon atom, right, and they can form the structure in any form, either in the long chain or in the branch form or in the ring form. This is the branch, this is the ring, and this unique property is called catenation, right. What is catenation? That catenation means the carbon atom can bonds with other carbon atoms, either in the form of long chains or either in the form of branch chain or either in the form of ring chain. Clear? समझ आ गया what is catenation? Yes, this is very much important question. What is catenation? Right? Yeah, why carbon can form large number of carbon compounds? First point is due to catenation. What is catenation? It can form, it can combine, here carbon can combine with other carbon atoms. Clear? समझ आया catenation क्या होता है? Yes बेटा? Yes. So yes ma'am. Okay, now coming to the second property. What is the second property of carbon? Right? Now what is the valency of carbon?
What is the valency of carbon? 4. 4. That means it always need to share with 4 electrons. ठीक है, समझ आ गया? कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसको कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, राइट? सो इट कैन शेयर with hydrogen also, it can share with the oxygen also, it can share with the nitrogen also, it can share with the halogens. Now what is halogens? Anyone can tell me? मैंने बताया था what is halogens? Can you give me the example of halogens? Yes, anyone remember? I told you in my previous class halogens क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको हम एक हैलोजेंस ग्रुप बोलते हैं, राइट? सो दिस कार्बन कैन कंबाइन विद हैलोजेंस आल्सो. जैसे आपने नाम सुना है, 9th में आपने फार्मूला बनाया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, बनाया था? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था, नहीं बनाया था? यस, याद है? यस स्टूडेंट्स, याद है? CCl4. बेटा बोलो, यस और नो बोलो. yes ma'am, Yeah. So this carbon can combine with hydrogen also, with oxygen also, with nitrogen, halogens, etc. So carbon has, since it is sharing the electrons, it can combine with many other elements also. And due to this valency of carbon, we call it as carbon is tetravalent in nature. Carbon क्या है? Tetra. Tetra means 4. Valent means valency. So carbon is tetravalent in nature. That means its valency 4. So it will share the electrons. Right? Due to these two properties, carbon can combine with the large number of elements and it forms large number of carbon compounds. Right? समझ आ गया? Versatile nature समझ आ गया? Yes. पेज नंबर 62 देखो. फर्स्ट पॉइंट आप मार्क करिए. सेकेंड पैराग्राफ में आपको फर्स्ट पॉइंट के दिया हुआ है कि नो अदर एलिमेंट कैन एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. और कोई एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो जाए. राइट? ओनली कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन्स. सेकंड में आपको टेट्रावेलेंसी जो मैंने अभी समझाई है, क्योंकि वैलेंसी 4 है इसलिए ये 4 अदर कार्बन के साथ कंबाइंड हो सकता है. एंड ड्यू टू दिस 4 वैलेंसी इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन आल्सो, इट कैन कंबाइन विद नाइट्रोजन आल्सो, sulfur also, chlorine also, it can combine with many other elements. Right? So these compounds are what? Among the bonds that carbon forms, the most other elements are very strong, right? They are very strong and these compounds are stable, exceptionally stable. And that is why due to the formation of strong bonds, carbon is of its small size, right? समझ आ गया? कार्बन का क्या है? स्मॉल साइज है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसका साइज छोटा होता है. और साइज छोटा होने के कारण क्या होता है? इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. राइट? लास्ट पैराग्राफ मार्क कर लेना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. राइट? द फॉर्म्स बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर. क्लियर? समझ आ गया? इसका लास्ट में मैं बुक शेयर करूंगी, कल आपके साथ बुक शेयर करूंगी. Then I will ask you to mark the lines. Now this carbon, because it is having strong bonding, इसमें attraction बहुत ज्यादा है, तो इसका साइज जो होता है छोटा होता है. एंड साइज छोटा होने के कारण इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. और these are very much stable compound. क्लियर? इतना समझ आया? तो हमने क्या पढ़ा है? Let us recall. First property is catenation. What is catenation? It can form long chains. It can combine with carbon-carbon bonding. Right?
समझ आ गया? It can occur in branch chain also, it can form ring chain also, ring structure also. So that is why it is catenation property है इसकी. Second, carbon is tetravalent in nature because of its valency is 4. So it can combine with many other atoms, right? Third point आप इसमें पढ़ सकते हो, bonding of carbon compounds is very strong because, ठीक है, because of more that is called, you can say it can hold electrons very closely. न्यूक्लियस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, न्यूक्लियस के सकार में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने के कारण ये मोर स्टेबल है और मोर स्ट्रांग है. राइट? क्लियर? समझ आ गया? Yes, मैम ma'am. प्लीज रिपीट, हम कैसे कह रहे हो साइज छोटा हो जाता है? साइज इसलिए बेटा, लास्ट पैराग्राफ अपना बुक का खोलो. These carbon atoms, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, आपकी बुक से ही पढ़ रही हूँ, अपनी बुक खोलो. अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल. One reason for forming of strong bonds of carbon is its small size. क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है और 4 के 4 कॉर्नर्स अटैच हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन पावर जो है, न्यूक्लियस इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. ये हम ना नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में न्यूक्लियर इफेक्ट में डिस्कस करूंगी. ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिसके कारण इसका छोटा साइज होता है, और जब छोटा साइज होता है तो इसमें बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग हो जाती है. ठीक है, देखो जितनी चीजें आपके पास पास होंगी, आपका फ्रेंड आपके जितना क्लोज होगा उतनी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी. होगी या नहीं होगी? थिंक ऑफ दैट. क्लोज फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है या फार ऑफ फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है? बोलो. Ma'am, close friend. क्लोज के साथ. सिमिलरली हियर आल्सो, इसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं दे विल फ्लो नियर बाय, तो इसके कारण क्या होता है, बॉन्डिंग इसकी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग करनी है. इन्होंने ये तो है नहीं कि मैंने ले लिया तो काम खत्म. जैसे मान लो आयनिक बॉन्डिंग में सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन कहेगा मेरा तो पेट भर गया, सोडियम तू जो मर्जी कर. ठीक है, जब हम शेयरिंग करते हैं तो हम ज्यादा अटैच रहते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे से काम चलाना है. ठीक है, अगर किसी को हमने कुछ दे दिया, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखता है? बोलो, देखता है? वो सोचता है मेरा तो काम चल रहा है. ठीक है, कई बार क्या होता है, आपकी फ्रेंड आपकी कॉपी ले जाती है, जब तो मिलते करके मांग लेती है, दे 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 दे. अब जब कॉपी मिल जाती है, आराम से छुट्टी लेके घर बैठ जाती है, उसको पता भी नहीं होता कि मैंने उस बच्चे की कॉपी भी देनी है. होता ही नहीं होता है. Yes or no? Ma'am, It yes. happens. It happens, Yes. no? So that is Yes, why ma'am. bonding is strong in sharing, right? Bonding is always strong in sharing, और इसमें न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इनका साइज भी छोटा रहता है. We are very much close. Clear? समझ आ गया? मैंने एग्जाम्पल आपको देख के समझाया है. Right? Now, coming to the most important topic, that is isomerism. Right? Clear? बेटा I will give you more slides on this. या मैं आपको अपने, अगर स्लाइड्स में मुझे, मैं भी ढूंढ रही थी, मुझे इतना खास बढ़िया मिल नहीं रहा था. ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो I will make video recording and I will send to you this in more detail. ठीक है? Now what is isomerism? And don't worry, this chapter in detail we are going to discuss in the school also when we are meeting. Okay? Carbon compounds having the same molecular formula but different structural formula are called isomers. For example, I am taking the formula of isomers starts from the butane. ठीक है, फर्स्ट ब्यूटेन से शुरू होंगे, मीथेन के आइसोमर्स नहीं बनेंगे. ठीक है, इथेन के भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे, प्रोपेन के भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे. क्यों? एटलीस्ट देयर इज कार्बन 4 फॉर ब्रांचिंग. आइसोमर्स में हमने ब्रांचिंग में जाना है. ठीक है, तो अगर हम मीथेन की बात करते हैं, CH4, इसकी ब्रांच बन सकती है? एक ही कार्बन है, ब्रांच कैसे बनाओगे? बना Yes, सकते हो? ma'am.
यस No, टेल मी ma'am. बना। चलो इथेन पे आ जाओ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की ब्रांच बन सकती है? No, ma'am. No, नहीं बन ma'am. सकती ना। 3 कार्बन आ जाओ, 3 कार्बन की ब्रांच बन सकती है? नहीं बन सकती। तो फर्स्ट मेंबर जो है ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्रांच शुरू होती है, तो आइसोमर्स आपके ब्यूटेन से ही स्टार्ट होंगी। आपके सिलेबस में ब्यूटेन पेंटेन है, एक में हेक्सेन एक्स्ट्रा करा देती हूँ, राइट। सिलेबस में अगर आप बुक भी खोलोगे तो आपको आइसोमर्स बनाने हैं ब्यूटेन के पेंटेन की, ठीक है। एक हेक्सेन भी हम आपको करवा देते हैं, वो इसमें नहीं है, मैं आपको अपने हाथ से स्लाइड बना के दूंगी। क्लियर? तो फर्स्ट नो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, दैट मींस molecular formula remains same. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ C4H10, दैट इज ब्यूटेन, ठीक है। C4H10 क्या है? ब्यूटेन है, राइट। ब्यूटेन में क्या होता है? ब्यूटेन इज, चलो इससे पहले हमारा ना एक कम रह गया, चलो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बाद में डिस्कस करूंगी। नाउ ध्यान से सुनना, ओके, पे अटेंशन कंप्लीटली, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर ना लगाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फर्स्ट मेंबर इज ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला C4H10। हम इसकी ब्रांच बना सकते हैं, पर जब हम ब्रांच बनाएंगे तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, इट विल बी C4H10, ठीक है। समझ आ गया है? ये C4H10 ही रहेगा। तो हम C4H10 को पहले हम स्ट्रेट चेन में बनाते हैं। देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यू कैन नंबर आल्सो दिस 1 2 3 4 आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया है? तो कार्बन 4 के साथ देखो चारों कॉर्नर पे आपने हाइड्रोजन लगाने हैं, लाइक दिस यू कैन सी इन द डायग्राम। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। हैव यू नोटिस्ड कितने हाइड्रोजन है? काउंट करो जरा। 10 10। Ma'am, 10. कार्बन के 10 साथ 4 बॉन्डिंग है, हाँ। हर कार्बन के साथ देखो 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। ध्यान से देखो, कार्बन के चारों कॉर्नर में 4-4 लाइन है। सपोज यू आर टेकिंग दिस कार्बन, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 बॉन्डिंग हो गई। यस, यू आर हैविंग 4। से यस और नो बेटा, इसमें मेरे को आपका पार्टिसिपेशन जरूरी चाहिए। यस मैम। कम एक टू द छोटा सा सेकंड, क्वेश्चन था। सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन के साथ 4 लाइंस है, 1 2 3 4। ये आपने ध्यान देना जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे। अगेन 4, थर्ड कार्बन में आ जाओ, 4 है, फोर्थ कार्बन में देखो 4 है या नहीं? Yes, ठीक ma'am. है। तो whenever you are drawing the structure, you have to see that कि each carbon attached with 4 other atoms, चाहे वो कार्बन की हो, चाहे वो हाइड्रोजन की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे मतलब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। कहने का मतलब है 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। क्लियर? अब ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। कमिंग टू द सेकंड कार्बन, देखो दिस कार्बन इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस हाइड्रोजन, 1 this with carbon, 1 with this carbon, and 1 this hydrogen. Have you seen it? Yes. Come to the third carbon, देखो it is sharing all the 4 electrons. Come to this carbon, this is also sharing 4 electrons, right? So whenever you're drawing the structure, कहने का मतलब क्या है? What I want to say, whenever you're drawing the structure, you should see that each carbon is sharing 4 electrons. ठीक है? समझ आ गया? Clear? And this is the structure, we call it as normal butane. आप शॉर्ट में N butane भी लिख सकते हो. You can write N butane also, right? Have you followed this? Then I'll come to next structure. ये समझ आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। मैम इसमें हर साइड पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे ना?
हाँ, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज जिसमें सिंगल वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैं आगे आ रही हूँ। दीज आर कॉल्ड अल्केन्स। पीछे ANE आएगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसके पीछे ANE आएगा। क्लियर? ये भी मैं आगे आऊंगी ना, तब तुम्हें समझ आता जाएगा। ठीक है? दीज आर कॉल्ड अल्केन्स। अल्केन्स में ANE आता है, तो हियर आल्सो यू आर गेटिंग ANE। ओके, क्लियर? समझ आ गया है? दीज आर कॉल्ड अल्केन्स। अभी मैं आगे आऊंगी, अल्कीन्स अल्काइंस तीनों डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज कॉल्ड अल्केन्स। तो आप जब भी ANE लिखोगे, ANE मींस सिंगल बॉन्डिंग। क्लियर? नाउ कैन आई कम टू दिस स्ट्रक्चर? नाउ ब्रांच में आ जाऊं। इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, सीधी चेन बन रही है, ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस, सी हियर 1 2 3 कार्बन है। चौथा कार्बन, वेयर आई हैव ड्रॉन फोर्थ कार्बन, आई हैव ड्रॉन हियर। मैंने यहाँ ब्रांचिंग शो कर दी है। राइट? समझ आ गया? एटलीस्ट 3 कार्बन शुड बी इन लाइन टू हैव अ ब्रांच। तो इसीलिए पेंटेन प्रोपेन के ब्रांच नहीं है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन अगर मैं डाल दूं तो प्रोपेन में तो कार्बन ही 3 है, तो चौथा कार्बन तो है ही नहीं। तो इसलिए प्रोपेन का कोई आइसोमर्स नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? सो नाउ सी हियर, फर्स्ट टू राइट द 4 कार्बन। हाउ यू आर राइटिंग 4 कार्बन? 1 2 3। अब फोर्थ कार्बन को मैंने क्या किया? ब्रांच बना दिए। क्लियर? क्लियर और नो? यस यस बेटा, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, अगर नहीं समझ आएगा मुझे वहीं रोकना। समझ आ गया? ब्रांच समझ आ गई पहले आपको? हाँ मैम प्रोपेन क्यों नहीं है आइसोमर, एक बार बताना। प्रोपेन में बेटा पता है क्या होता है? प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, राइट? ठीक है? फर्स्ट कार्बन पे आप ब्रांच नहीं बनाओगे। ठीक है? फर्स्ट कार्बन से ब्रांच नहीं बनती है। ब्रांचिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द सेकंड कार्बन। क्लियर? तो अगर 3 कार्बन है तो हम 2 एक लाइन में लिख के नीचे से ब्रांच नहीं बना सकते ना। ठीक है? मतलब अब आपने 3 कार्बन लिखे हैं तो आप सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग बनाओगे। तो प्रोपेन में तो होते ही 3 कार्बन है, तो अगर मान लो आपने 2 एक लाइन में लिख दी तो तीसरा कार्बन यहाँ इसकी यहाँ से भी नहीं शो कर सकते, ब्रांचिंग यहाँ से भी नहीं शो कर सकते। इसलिए ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल इन 3 कार्बन। क्लियर? ब्रांचिंग इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट सेकंड कार्बन। क्लियर? चाहे लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो, सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग बनेगी। क्लियर? You can count from the left also, you can count from the right also, it doesn't matter. Clear? Have you followed this step? सबको समझ आ गया ये स्टेप? Anyone is having doubt? बोलो बेटा, बोलो, गिव मी रिस्पॉन्स। अगर किसी को डाउट है बोला करो। बेटा मैं कैमरा इसलिए नहीं ऑन करती हूँ क्योंकि फिर स्लाइड नहीं दिखेंगी। ओके? समझ आ गया नहीं आया? मैम Yes, सेकंड ma'am. कार्बन से क्यों ही होती है मैम ब्रांच? ब्रांचिंग इज पॉसिबल विद द सेकंड कार्बन ओनली। फर्स्ट कार्बन से ब्रांचिंग करके इनकी बॉन्डिंग की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज द ब्रांचिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड कार्बन। ओके? दैट डजंट मैटर, चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लो चाहे आप राइट से काउंट कर लो, पर ब्रांचिंग आप सेकंड से ही स्टार्ट करोगे। सेकंड के बाद आप थर्ड में जा सकते हो, बट ना फर्स्ट में ब्रांचिंग करोगे ना लास्ट में ब्रांचिंग करोगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंड लास्ट में ब्रांचिंग नहीं होगी। क्लियर? क्लियर? उनकी बॉन्डिंग की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। सो देखो, अब कमिंग टू द ब्रांचिंग, 1 2 3 कार्बन इधर हो गए, फोर्थ कार्बन इधर हो गए। अब आपने चारों तरफ हाइड्रोजन लगा के इनके 4 के 4 कॉर्नर अटैच करो। सी हियर, यू हैव अटैच 1 हाइड्रोजन हियर, सेकंड हियर, 3 हियर, एंड फोर्थ वन वी अटैच विद द कार्बन। तो इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई।
कम टू द सेकंड कार्बन, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक कार्बन नीचे आ गया, 4 हो गई लाइनें, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। नाउ कम विद द थर्ड आल्सो, 1 2 3, इससे भी शेयरिंग हो गई। अब नीचे ब्रांच वाले पे आ जाओ, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, और ये फोर्थ वन कार्बन कार्बन से अटैच हो गया। तो आप पहले ये देखोगे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना के कि क्या मेरे कार्बन चारों तरफ से अटैच है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही। नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, काउंट करो अब इसमें, इज देयर एनी चेंज? कार्बन भी काउंट करो, हाइड्रोजन भी कार्बन काउंट करो, इज देयर एनी चेंज? बोलो। No, ma'am. No, कार्बन ma'am. कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 10. 10। तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल नॉट चेंज, ओनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज। तो आइसोमर्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज। नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आप इसको आइसोब्यूटेन भी लिख सकते हो। एंड वन मोर नेम यू कैन राइट, लिखो यहाँ पर नाम अपने अपने कॉपी में, 2 मिथाइल प्रोपेन। लिखो 2 मिथाइल, METHYL, बताती हूं कैसे, 2 मिथाइल प्रोपेन। लिख लिया? 2 मिथाइल, METHYL, प्रोपेन, PROPANE। अब मैंने ये नाम क्यों बोला, कैसे बोला, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। हैव यू रिटन द नेम फर्स्ट? यस बेटा, लिख लिया नेम? Yes, टेल ma'am. बेटा, टेल। राइट, सो देखो, फर्स्ट आई टोल्ड यू 2 का मतलब क्या है? द ब्रांचिंग इज एट 2। क्लियर? 2 क्यों लिखा? बिकॉज द ब्रांचिंग इज एट 2। क्लियर? फिर मैंने लिखा मिथाइल। मिथाइल क्यों लिखा? दिस सेकंड कार्बन पे, इस कार्बन पे आओ, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच? सी, जहां मेरा कर्सर है वहां देखो कितने हाइड्रोजन अटैच है। यस, Ma'am, 3. 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3। मीथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? यस, मीथेन में कितने Ma'am, हाइड्रोजन 4. होते हैं? 4। तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है, अग्री और नो? एक हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो हम जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो बोलते हैं मिथाइल। ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाते हैं, मैं बाद में बताऊंगी, OH लग जाता है बाद में, ये है मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर इथेन में एक हाइड्रोजन कम होगा तो इथाइल बोलेंगे, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम होगा तो प्रोपाइल बोलेंगे। इसी तरह ब्यूटेन में अगर C4H9 होता तो बोलते ब्यूटाइल। समझ आ गया? YL लग जाता है। क्लियर? 2 मिथाइल। अब मैंने आगे क्या लिखवाया है? 2 मिथाइल के बाद क्या लिखवाया है? Ma'am, propane. प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों लिखवाया है? प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? मैंने आपको बताया था, ये देखो, प्रोपेन में कितने कार्बन है? बेटा देखो स्लाइड में, देखो प्रोपेन में कितने कार्बन है? मैम 3। 3। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? नीचे वाला छोड़ दो, वो तो हमने मिथाइल में अटैच कर दिया ना, इसको हमने मिथाइल में कर दिया, ठीक है, 2 मिथाइल लिख दिया। अब ये कार्बन मिथाइल में चला गया। अब कितने कार्बन बचे? यस, कितने कार्बन बचे बेटा? बोलो। 3।
कार्बन 3 बचे, तो कार्बन 3 किस में आते हैं? प्रोपेन में आते हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द नेम 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, देखो मैं कर्सर बता रही हूँ. 2 का मतलब सेकंड कार्बन से अटैच है. क्या है? मिथाइल ग्रुप है. 2 मिथाइल, इसको मिथाइल ग्रुप बोलना है आपने. मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्योंकि 3 कार्बन है, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एज प्रोपेन. क्लियर? समझ आ गया? यस, यस और नो? बोलो बेटा. मैम रिपीट करना. 2 सेकंड कार्बन से अटैच है, सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग है, इसलिए हमने 2 लिखा. फिर 2 जो सेकंड कार्बन पे जो ब्रांचिंग है उस पे आ जाओ. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, तो जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो वो बन जाता है मिथाइल. ठीक है, समझ आ गया है? तो इसको बोलेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल. और इसमें आ जाओ, क्योंकि 3 कार्बन है, देयर आर ओनली 3 कार्बन्स, सो वी कॉल इट एज प्रोपेन. क्लियर? सो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन. इसका दूसरा नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन जनरल नाम है. और 2 मिथाइल प्रोपेन जो हम बोल रहे हैं, दैट सॉरी, हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन जो बोल रहे हैं वो है IUPAC नेम, IUPAC नेम. ठीक है, समझ आ गया? साइंटिफिक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन. क्लियर? ये दोनों समझ आ गए? तो मैं अगला डिस्कस करूंगी. चलो अगला करते हैं, नहीं समझ आएगा तो फिर दोबारा लूंगी. नाउ कमिंग टू द पेंटेन. पेंटेन में कार्बन कितने हैं? यस, पेंटेन में कार्बन कितने हैं? हाउ मेनी कार्बन आर? Ma'am, 5. 5. And hydrogen is 12. So first you draw the straight chain. Straight chain draw करो. You are going to draw like this. ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? समझ आ गया या नहीं? This is called normal pentane, N-pentane. Clear? समझ आया? बोलो. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अब आते हैं ब्रांच पे. तो ब्रांच मैंने क्या बोला है? सेकंड कार्बन से बनेगी, या लेफ्ट से सेकंड ले लो या राइट से सेकंड ले लो, यही बोला है. तो जब हम सेकंड कार्बन से ब्रांच बनाएंगे तो इस लाइन में कितने कार्बन आ जाएंगे? 4. 1 2 3 4. आपने जो काउंटिंग करनी है वो यहां से करनी है शॉर्टेस्ट से, क्योंकि यहां से काउंटिंग करो तो ये 1 2 3 पे ब्रांच शो कर रहा है, तो दैट इज द रॉन्ग मेथड. ठीक है, तो आपने काउंटिंग करनी है यहां से 1 2. क्लियर? हाँ, ये हो सकता है आप सेकंड कार्बन यहाँ की बजाय ब्रांच यहाँ से बना दो, दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? यहाँ बनाने की बजाय आप यहाँ पे भी बना सकते थे. अगर यहाँ बनाओगे तो यहाँ से काउंट करोगे पीछे से 1 2. अब आपने आगे से सेकंड में बनाई है, इसलिए यू आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम फ्रंट. 1 2 ऐसे काउंट करोगे. ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन ही हो गए, 5th कार्बन ऊपर चला गया. ठीक है, अब नेमिंग इसको हमने आइसोपेंटेन बोल दिया है. अगर मैं IUPAC के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक के अकॉर्डिंग नेम करूंगी तो बोलो, अब तुम करो, बोलो कैसे करोगे? सेकंड कार्बन से अटैच है तो क्या बोलेगा? 2. ठीक है, समझ आ गया? अब 2 मिथाइल, देखो ये क्या है? CH3. जब CH3 हो जाता है तो मिथाइल बन जाता है, अभी मैंने आपको बताया. तो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल. आगे क्या लिखोगे? कार्बन 4 है तो क्या बनेगा? बोलो. बुटेन. ब्यूटेन. वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड. 2 मिथाइल ब्यूटेन. समझ आ गया? कार्बन 4 किस में होते हैं? देखो इधर ब्यूटेन में होते हैं, तो ये कार्बन 4 वाली चेन है. ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, समझ आ गया? यस मैम. ठीक है, अब आ जाओ. अब हम इसमें एक ब्रांच बन गई, अब हम 2 ब्रांच भी बना सकते हैं. कैसे? 3 कार्बन बीच में ले लिए, एक कार्बन मैंने ऊपर बना दिया, एक कार्बन मैंने नीचे बना दिया. समझ आया? सेकंड कार्बन पे बनानी है ना ब्रांच, तो हम सेकंड कार्बन पे ऊपर भी ब्रांच बना सकते हैं, नीचे भी ब्रांच बना सकते हैं. क्लियर?
तो अब देखो, अब बाकी फिर हाइड्रोजन अटैच कर दो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों तीनों डायग्राम में देखो हाइड्रोजन 12 है, पहले काउंट करो, काउंट करो पहले, तीनों में हाइड्रोजन 12 है। यस बेटा, यस मैम। है ना। तो स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, है ना। अब देखो, अब इसकी नेमिंग क्या करोगे, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन, राइट। क्लियर, नियोपेंटेन, ये है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बट अगर हम आईयूपीएसी की नाम बात करते हैं तो देखो कार्बन से 2 ब्रांच है, इसलिए आप क्या लिखोगे, 2 2 2 कॉमा 2। समझ आ गया, कार्बन में 2 ब्रांच है तो क्या लिखोगे, 2 कॉमा 2। ठीक है, और ये भी एक मिथाइल है और ये भी एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गए, तो लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल। क्या लिखोगे, 2 2 डाई मिथाइल। और का इसमें स्ट्रेट चेन में देखो कितने कार्बन है, बोलो। मैम स्ट्रेट 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो क्या बन जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ आ गया, ऐड क्यों कर रहे हैं, 2 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपेन समझ आ गया, 2 2 दो बार क्यों ऐड बोल रहे हैं। क्योंकि इस कार्बन की कितनी ब्रांच हो गई, यहाँ कार्बन की एक ही ब्रांच थी ना, यस मैम। तो यहाँ कार्बन की क्या है, 2 2 ब्रांच ब्रांचेस। है। तो 2 2 लिखोगे ना कि 2 ब्रांच है, एक कार्बन ऊपर है एक कार्बन नीचे है, ओके मैम। ठीक है। और डाई मिथाइल बन गया, और क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया। ठीक है, समझ आ गया है। So this is how we are naming and this is how you can draw the isomers. अब देखो कार्बन के 2 बने, सॉरी ब्यूटेन के 2 बने, पेंटेन के 3 बने। अब आप हेक्सेन के बनाओगे, वहां पर आपके 4 बनेंगे। आपने हेक्सेन के अपने आप बनाने हैं, मैं बना के वीडियो भेजूंगी एंड यू आर गोइंग टू टैली। ठीक है, समझ आ गया है। ऐसे ही आपने हेक्सेन के बनाने हैं और मैं भी बना के भेजूंगी, आप मेरा और अपना टैली करना। क्लियर, मैम एंड किसके आई, बनाने हैं, हेक्स। हेक्सेन C6H14 के, तो ओके। आपके C6H14 के 4 बनेंगे। एक नॉर्मल बनेगा, एक आइसो बनेगा, एक नियो बनेगा और एक और बनेगा जिसको आप नेम दोगे अपना, उससे जैसे मैंने ये नेम दिया हुआ है 2 2 डाइमिथाइल, ऐसे आपने नेम देना है। ठीक है, आपने बना के रखना है, मैं बना के भेजूंगी या मैं स्लाइड में डालूंगी, कल मैं शो करूंगी आपको, और आपने मेरे साथ अपना स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स टैली करने हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कल मुझसे पूछना है, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सिलेबस में आपके आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ब्यूटेन और पेंटेन ही है बुक में, बट हम एक एक्स्ट्रा बनवाते हैं हेक्सेन टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हेक्सेन का भी आ सकता है पेपर में, इसलिए आपने ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन तीनों अच्छे से करने। क्लियर, समझ आ गया। एंड दीज आर कॉल्ड अल्केन्स, इनको अल्केन्स बोलते हैं, और इनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, और जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिफरेंस में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बाद में बताऊंगी, पहले ये सारा बताऊंगी। सो हैव यू फॉलोड व्हाट आई डिस्कस टुडे? यस बेटा, यस मैम। ठीक है। Have you followed what I discussed today? So you go through your book, slides भी ध्यान से देखना। I am sending you this slides also to you, और अपने आप बनाने की कोशिश करो। This is all understanding and there is no कोई इसमें रट्टा कुछ नहीं लग सकता जब तक आप इसको समझोगे नहीं। क्लियर, समझ आ गया बेटा? Yes, have you followed?
anything